Praise the Lord. Welcome to the Hour of Miracle. We are very happy and delighted that you can join with us today. Psalms chapter 23 and verse 5 says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." There was a small girl who was very notorious. She always used to do some or the other kind of mischief all the time in the house. And one day when the parents were very much irritated with her, they just thought that she is not going to eat dinner with us. So they placed a table in the corner of the house and told her to go alone there and eat the dinner alone by herself. She was very angry, she was upset, she was feeling very discouraged, but because of all of this, she went there and the mother stood nearby and she heard her daughter praying. And the daughter said, "Oh God, thank you that you prepare a table before me in the presence of my enemies." You know, sometimes we feel like the people around us, the situation around us are like enemies. But it is not always the case. That sickness might be your enemy. Your financial crisis might be your enemy today. The situations and the people around you, the way they are treating you, everything might look like your enemy. But today God is promising you that I am going to prepare a table before your enemies. So today, आज हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है. आज शायद आपकी आर्थिक समस्या मानो आपके दुश्मन के समान हो गई है. आज शायद आपकी तबीयत जो है, आपकी जो चंगाई जो आप प्राप्त करना चाहते हैं नहीं पाने की वजह से आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी मेरी दुश्मन हो गई है. आज आपके आसपास की परिस्थितियां, आज जो लोग आपके आसपास हैं, जैसा व्यवहार वे आपके साथ कर रहे हैं, शायद मानो हर एक बात आपको दुश्मन के समान लग रही है. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक वादा दे रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हारे लिए एक मेज बिछाऊंगा. I will create a reason for you in the midst of your situation to celebrate and to make a feast out of all those things. और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हारे वो दुश्मनों के बीच में, तुम्हारी वो परिस्थितियों के बीच में, वो तुम्हारे सारे बंधनों के बीच में मैं एक कारण दूंगा, एक ऐसा कारण जिसमें तुम उत्सव मना पाओगे, जिसमें तुम पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर पाओगे, जिसमें तुम पूरी तरीके से परमेश्वर के आनंद में जी पाओगे. तो आइए इस समय हम हमारे परमेश्वर के पास जाएंगे, जानते हुए कि हाँ, हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जानते हुए कि शैतान तो हमारा नाश और घात करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं. हमारे लिए परमेश्वर उसके चमत्कारी कार्यों को करेगा. So let's just pray and let's just worship the Lord in this time. आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस समय हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, जानते हुए कि we are the children of God. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone.
I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Hallelujah, Lord. Fear has lost its grip on me, O God. आज परमेश्वर डर का सारा बंधन मेरे जीवन से टूट गया है। I had fear in my life, हाँ, मेरे जीवन में डर तो था, but today you have liberated me from all fear, O God. लेकिन आज आपने मुझे सारे डरों से आजाद कर दिया है। You have given me confidence and power. आपने मुझे सामर्थ दिया है, आत्मविश्वास दिया है। I am no longer an orphan, but I am a child of God. मैं अभी अनाथ नहीं, मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ I am a heir, O God. और मैं तो आपका वारिस हूँ। I have all privileges in heaven. और स्वर्ग में मेरे लिए सारी बातें उपलब्ध हैं। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है, He will make a way for me. वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। Thank you, Father, for this time. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय Thank के you, लिए। Jesus, for this time. धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा इस समय के You are लिए। welcome in this place. यहाँ पर आपका स्वागत है। Touch our lives. आज हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए, Speak to us today. आज हमसे बातें कीजिए। We love you, हम Jesus. आपको प्रेम करते हैं यीशु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सभियों को, Once again, shalom to you all. सभी लोगों को शालोम। Let's turn to the Word of God. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। The topic of my message is आज का मेरा विषय है From Limitation to Exaltation. सीमितता से पदोन्नति। Ephesians chapter 3 and verse 20. To him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think according to the power that works within us. इफिसियों का 3रा अध्याय और 20वां वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसी सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। So brothers and sisters, we have wonderful assurance that God's power is working inside of us. और भाई और बहन, आज हमको एक विश्वास है कि परमेश्वर का महान सामर्थ आज हमारे अंदर कार्य कर रहा है। As a human beings, lot of times we have limitations. एक मानव होने की वजह से हम अनेक सीमाओं में जी रहे हैं। Everyone has weaknesses, shortcomings, हर एक की कमियां हैं, निर्गुण हैं, but we can overcome them. लेकिन हम उन सारी बातों के ऊपर जीत पा सकते You हैं। do not have to stay in that same position. आज आपको उसी जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। So we can overcome all these shortcomings and limitations in our life. और आज हम इन सारी सीमाओं के ऊपर और ये सारे ऐसे दुर्गुणों के ऊपर आज हम विजय प्राप्त कर सकते In हैं। natural and in our physical, it is impossible to overcome them. वास्तविक तरीके से अगर देखा जाए, शारीरिक तरीके से देखा जाए तो ये तो असंभव है, But the word of God tells us लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है God's mighty power, that is the power of the Holy Spirit, is working inside of us. और वो परमेश्वर का महान सामर्थ, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ आज हमारे अंदर कार्य कर रहा है। And if you see the word work in Greek, और यहाँ पर कार्य शब्द को अगर हम ग्रीक भाषा में देखें, the word energio is used. वहां पर एनर्जियो शब्द इस्तेमाल हुआ है। And it means working in a situation which brings it from one stage or one point to the next. ऐसी कृति करना ताकि एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच सकें। So it is the same implication used for a light bulb. और यहाँ पर वही इस्तेमाल हुआ है जैसा लाइट बल्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है। When energy is in that wire, it will produce an electricity and a light bulb will shine. अगर वो बिजली उस तारों के अंदर से गुजरकर बल्ब में जाएगी तो प्रकाश उत्पन्न होगा। So similarly, brothers and sisters, you are the light of the world. और वैसे ही भाई और बहन, आप परमेश्वर के द्वारा आज जगत का प्रकाश हैं। And we are living in dark times. और आज हम बहुत ही ज्यादा अंधकार भरे समय में रह रहे हैं, But we need to shine our light. लेकिन हमें तो उस प्रकाश को चमकाना है। But the word of God tells us that the energy, that is the power of God that will work in our life, it will produce that light. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का सामर्थ है वो हमारे द्वारा ऊर्जा को, वो हमारे द्वारा उस बिजली को उत्पन्न करेगा। Many of you have a call on your life. अनेक लोगों को आज परमेश्वर के द्वारा एक बुलावट है, Deep down you know that God expects mighty things from my life. और आप दिल की गहराई में जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके लिए कुछ कार्य करें। But there are some limitations. There are those things that are pulling you back again and again. लेकिन शायद आज आपके जीवन में कुछ कमियां हैं,
हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते। You are surrounded by many battles that are internal in your heart, in your mind, in your thoughts. और आज शायद आपके मन में, आपके विचारों में, आपके दिल में, आपके ऐसी बातों में आज आप अनेक ऐसी संघर्षों से गुजर रहे हैं। So what type of limitations that you are facing? आज आप कौन सी सीमाओं से गुजर रहे हैं? It might be physical. शायद ये शारीरिक रूप से हो सकता है। Many times you think that, oh, I'm not good looking, I'm an ugly person. You are hating your body and the way you are made. और कई बार लोग शारीरिक तरीके से अपने आप से नफरत करने लगते हैं। आपको जैसा बनाया गया है, आपका शरीर जैसा है, आपको ऐसा लगता है मैं तो बदसूरत हूँ, मुझे अच्छा नहीं बनाया गया है। Many times in educational qualifications, people think that they are limited. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका शिक्षण काफी नहीं है, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। Oh, it is good to have education. बहुत अच्छा है शिक्षित होना, But education doesn't define your success in this life. लेकिन इस जीवन में आपका शिक्षण नहीं बताता कि आपको सच में यश प्राप्त होगा कि नहीं। There are many more important qualities that are character and morals and virtues in our life. हमारा चरित्र कैसा है, हम कौन सी बातों पर भरोसा करते हैं, हम कैसा नैतिक जीवन जी रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। Third thing is lot of time our failures in our life they put limitations in our life. और कई बार तीसरी बात हम देख सकते हैं, हम पूरी तरीके से हार जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जीवन में अनेक सीमाएं आ जाती हैं। Another thing is financial crisis, poverty, lack of money and resources put limitations in our life. अनेक बार हमारी आर्थिक समस्या खराब होती है, हम तो गरीबी में चले जाते हैं। कमी होने की वजह से अनेक बार हमारे जीवन में ये सीमाएं आ जाती हैं। But brothers and sisters, today the word of God came to us that the power of Holy Spirit is working in our life. और आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आ रहा है कि परमेश्वर का महान सामर्थ आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। No matter what limitations you are facing and is on your life, but God's power is working inside of you. आज फर्क नहीं पड़ता आज आपके जीवन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी सीमाएं हैं, लेकिन आज परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रहा है। So let's look to the example of an Old Testament character about how to break free from limitations. और आज हम एक पुराने नियम के एक व्यक्ति से देखेंगे कि कैसे हम वो सारी सीमाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। As one man of God has said this thing, और एक परमेश्वर के ऐसे दास ने कहा है, you can have all the talent in the world, दुनिया में जितना टैलेंट है वो आपके अंदर हो सकता है, but if his hand and blessing that is not on it, you cannot go anywhere. लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं तो आप कहीं नहीं जा सकते। You might have all the talents in this world, और शायद आज आपके पास दुनिया भर के टैलेंट होंगे, but if God's hand is not over your life, लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ आज आपके ऊपर नहीं है, you cannot go forward. आप आगे नहीं बढ़ सकते। So today, let's turn to Hebrews chapter 11 and verse 32. इस समय हम जाएंगे इब्रानियों की 11 और 32 वचन में। And it says, what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson and Jephthah, about all the prophets. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदयोन का और बारक का और शिमशोन का और यिप्तह का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। So here we see one character, his name is Jephthah. और यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं जिसका नाम है यिप्तह, And he was a mighty judge of Israel. और वह तो इजराइल का एक न्यायी था। Whenever we hear about Jephthah, और जब भी हम यिप्तह के बारे में सुनते हैं, lot of times we hear negative things about him. हमेशा हम उसके बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं Only about the rash vow that he took for the battle. कि कैसे उसने जल्दबाजी का वादा किया था, So because of that vow, it cost his daughter's life. और उस वादे की वजह से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। Bible is filled with the characters of people who had struggles in their life. और बाइबल में अनेक ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो अनेक संघर्षों से गुजरे हैं। Bible is filled with the people just like you and me. और बाइबल में तो आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं। And through their lives, God teaches us every day how to live a victorious life. और उनके जीवन से परमेश्वर हमें सिखाता है कि हर एक दिन हम कैसे विजय जीवन जी सकते We need to हैं। take positive and negative things from their lives. हमें उनके जीवन से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को सीखना है। Negative things we need to be aware of and we need to be careful that we should not make the same mistake like they did. और नकारात्मक बातों को समझ के हमको ये जानना है कि उन्होंने जैसी गलतियां की हम वैसी गलतियां ना करें। And the positive things from their life we can apply in our life and apply those principles that God taught them to live a victorious life. और जो सकारात्मक बातें हैं उनको हम सीखने पाए और वो सारी बातों को हमारे जीवन में हम लागू करने पाए और उनकी जीत में हम जीने पाए। So today let's focus on some positive points and some principles from the life of Jephthah. और इस समय हम यिप्तह के जीवन से सकारात्मक बातों को जानेंगे, कुछ सिद्धांतों को हमारे जीवन में हम लागू करेंगे। God is going to take you forward. परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है God wants to exalt you. और परमेश्वर तो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। So let's see this life of Jephthah. और इस समय हम यिप्तह के जीवन से देखेंगे। We see that he had a lot of baggages. He has a lot of things in his life that would have prevented him from becoming a mighty judge. उसके जीवन में तो अनेक तरीके के बोझ थे, ऐसी अनेक बातें
बातें थी जो उसको आगे बढ़ने से रोक सकती थी। These limitations made his life miserable. और ये सारी सीमाओं की वजह से उसका जीवन तो मानो बेकार सा, व्यर्थ सा हो गया था। How can he become a mighty judge? और वो कैसे इतना महान न्यायी बन गया? How can his name appear in Hebrews chapter 11? कैसे उस व्यक्ति का नाम इब्रानियों के 11 अध्याय में लिखा है? This Hebrews chapter 11 is filled with the men and women of God who are mighty in faith and in character. They did mighty things for God. और इब्रानियों के 11 अध्याय में तो ऐसे परमेश्वर के दास और दासियों के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के लिए महान तरीके से विश्वास का जीवन जी रहे थे। Today you might be also wondering, और आज शायद आप भी सोचते होंगे, will I be able to do something for God? क्या मैं परमेश्वर के लिए कुछ महान कर पाऊंगा क्या? I have many limitations in my life. मेरे जीवन में तो अनेक सीमाएं हैं। But brothers and sisters, let me tell you, if God can use Jephthah, He can use you. लेकिन भाई और बहन, मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर यप्ता को इस्तेमाल कर सकता है, वह आज आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। Now let's look at the limitations that would have been preventing him from becoming a judge. और आज हम देखेंगे कुछ ऐसी सीमाएं जो उसको रोक सकती थी वो परमेश्वर का महान तरीके का पराक्रमी योद्धा बनने से। First thing, सबसे पहली बात, he was an illegitimate child. वह तो नाजायज बच्चा था। Let's turn to Judges chapter 11 and verse 1. Jephthah the Gileadite was a mighty warrior. His father was a Gilead. His mother was a prostitute. न्यायों का 11 अध्याय और पहला वचन, यिप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद में यिप्ता उत्पन्न हुआ था। So here we see that he was an illegitimate child. और यहाँ पर हम देख सकते हैं वह तो एक नाजायज बच्चा था। And he says that his mother was a prostitute. क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसकी माँ तो वेश्या थी। So what future he has? उसका भविष्य क्या है? Growing up, he would have undergone lot of taunts and lot of gossips from people. और शायद जब वह बड़ा होता होगा तो उस समय उसने अनेक लोगों की ऐसी बातें सुनी होंगी, लोग उसको नीचा दिखाते होंगे, उसकी बुराइयां करते होंगे। He didn't have any scope or he didn't have any future उसका तो मानो भविष्य दिख ही नहीं रहा है, because he was an illegitimate child. क्योंकि वह तो एक नाजायज बेटा है। Even in this generation where the world is so modernized, still people look down upon this kind of people. और आज जब हम पूरी तरीके से मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, आज भी ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा नीची नजर से देखा But this जाता is है। about thousands of years back. People would have been looking down at him. There was no future for this boy. और मैं तो हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ और कितना ज्यादा लोग उसको नीचा देखते होंगे। Even the word of God tells us in Deuteronomy chapter 23 and verse 2, if a person is illegitimate by birth, neither he or his descendants for 10 generations may be admitted to the assembly of the Lord. व्यवस्था विवरण का 23 अध्याय और दूसरा वचन, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। So we see from this word of God और हम यहाँ से परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं that this kind of people who were from a illegitimate background were not supposed to come in the assembly of God. और नाजायज बच्चों को परमेश्वर की सभा में आने की इजाजत नहीं थी। So it is talking about coming in the assembly of the Lord. और यहाँ पर तो परमेश्वर की सभा में आने की बात की गई है। Forget about serving God, forget about doing things for God. They can't even come in the assembly of God's people. और भूल जाइए परमेश्वर की सेवा करने के बारे में, भूल जाइए परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के बारे में, उनको तो इजाजत ही नहीं कि वे परमेश्वर की सभा में भी भागीदारी हो सके। Deep down he wanted to maybe serve God or do things for God. और शायद उसके दिल की गहराइयों में तो वह परमेश्वर की सेवा करना चाहता होगा। But we see that because of this illegitimate status that he was not able to do anything in his life. लेकिन अभी तो उसकी पहचान हो गई है कि वह एक नाजायज बच्चा है, अभी वह कुछ भी नहीं कर सकता। Maybe things come in our life that you have absolutely no control of. और शायद कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके ऊपर हमारा कुछ ताबा नहीं It होता। is not your fault, but it is somebody else's fault, and you are suffering and you are affected by that kind of things. और आपकी तो गलती भी नहीं होती, आपकी दूसरों की गलतियों की वजह से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मुश्किलों में जा रहे हैं। So he knew that his future is not going to be so easy. और उसको पता था कि उसका भविष्य एक अच्छा भविष्य नहीं होने वाला। He had many issues that he is going to deal with. और उसके जीवन में तो अनेक ऐसे संघर्षों से उसे गुजरना पड़ेगा। Constant criticism and constant gossiping of people over his life. लोग उसके विरुद्ध कुरकुर करेंगे, लोग उसके पीठ पीछे बात करेंगे। But we see the word of God लेकिन हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देख सकते that हैं। later his name is appearing in Hebrews chapter 11. उस व्यक्ति का नाम तो इब्रानियों के 11 अध्याय में लिखा Oh, है। here we saw the word of God that the illegitimate child was not allowed to
come in the assembly of God. हमने तो अभी वचन पढ़ा है कि ऐसे नाजायज बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की ऐसी इजाजत भी नहीं थी। But here we see that God is choosing Jephthah to become a judge for the people of God. लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर ने यप्ता को इस्तेमाल किया है और उसको न्याय के रूप में खड़ा कर दिया है। And his name appears in the Heroes of Faith in Hebrews chapter 11. और उसका नाम तो इब्रानियों के 11 अध्याय में हम पा सकते हैं। So what we see here? और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? Yes, God's laws are strict and God's laws are unbreakable. हाँ, परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा कठोर है, वो बदलती नहीं है। But more than his law, his love is powerful. लेकिन उसकी सारी व्यवस्थाओं से ज्यादा उसका प्रेम वो ज्यादा प्रभावशाली And है। that love can transform your life and make you valuable and useful for his glory. और आज उसका प्रेम आपके जीवन में कार्य कर सकता है, आपको मूल्यवान बना सकता है, कीमती बना सकता है, आपको महत्वपूर्ण बना सकता है। Jephthah had never had any idea that God can use his life. यप्ता को कभी भी अपनी सोच में ऐसा विश्वास नहीं हुआ रहेगा कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकता है। He was a child of shame. और वह तो शर्मिंदगी का बेटा था। He had every reason to blame his mother and all the people that are around him. उसको तो पूरा हक था कि वह अपनी माँ को और अपने आसपास के सभी लोगों के ऊपर दोष लगाए। It is easy to blame people today. और आज कितना आसान है कि हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। Oh, do not blame the people around your life, but we need to go through and we need to face the situation boldly, trusting our God. और हमें आज दोष लगाने की बजाय वो परिस्थितियों में हमें एक दूसरे को सामना करना है और सामना करते हुए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। Today your situation may be like a dust and ashes. और शायद आज आपकी जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से राख हुई रहेगी, पूरी तरीके से मानो मिट्टी में मिल गई होगी। But the word of God tells us that he will give you beauty for ashes. लेकिन वचन तो ऐसा कहता है कि राख में भी वो खूबसूरती निर्माण करने वाला परमेश्वर है। So here we see that he's an illegitimate child. और हम यहाँ पर देख सकते हैं वो तो एक नाजायज बच्चा है। And nobody's around him and nobody's encouraging him. और कोई भी उसके आसपास नहीं है, कोई भी उसे उत्तेजन नहीं दे रहा है। And because of this situation, now he's in wrong company. और अभी ये सारी परिस्थितियों की वजह से अभी तो उसकी गलत लोगों से दोस्ती हो गई है। But let me tell you, inside he's a good person. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अंदर से तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है। Let me tell you, it is not your fault today. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी गलती नहीं है। Maybe some of your parents, teachers, or people around you told you it is your fault, but let me tell you, God says it is not your fault. और आज शायद आपके टीचर्स ने कहा होगा, आपके माता पिता ने कहा होगा कि तुम्हारी गलती है, आसपास के लोगों ने कहा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी गलती नहीं है। His status was an illegitimate child. और उसकी जो पूरी तरीके से पहचान थी वो तो ये थी कि वे एक नाजायज बच्चा है। But his real identity was he was a child of God. लेकिन उसकी असली पहचान तो ये थी कि वे तो परमेश्वर की संतान है। Illegitimate child was his social status, what people thought about him, but when God saw him as his child. और सामाजिक नजरों में तो वो एक ऐसा नाजायज बच्चा था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वे तो उसकी संतान था। And let me tell you, those people who blamed him and those people who looked down upon him, one day they came to ask him for help. वो जो सारे लोग जो उसको नीचा देख रहे थे, उसकी बुराइयां कर रहे थे, वे एक दिन उसके पास आए हैं उसकी मदद मांगने के Those who लिए। rejected him came to him to ask for help. और जिन लोगों ने तो उसे नाकारा था वही लोग उसकी मदद मांगने आए And हैं। same thing can happen through your life, और brother. आज वैसा ही आपके जीवन के द्वारा हो सकता है भाई, Through your life, sister. आपके जीवन के द्वारा हो सकता है बहन। The people who rejected you जिन लोगों ने तो आपको नाकारा है because of the call of God that is on over your life. और उस बुलावट की वजह से जो आपके जीवन के ऊपर है, God is causing those people to come back to you. और आज परमेश्वर वो सारे लोगों को आपके जीवन में वापस लाना They चाहता will है। come back to you for advice, for prayer, for counseling. और वही लोग आज आपके पास आने वाले हैं आपका सुझाव लेने के लिए, परमेश्वर के द्वारा आपका इस्तेमाल होगा। God is going to use your life to become a solution for their problems. और परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा ताकि आप उनकी समस्याओं का एक उत्तर बन सके। So first limitation that he faced was he was an illegitimate child. सबसे पहली सीमा जो उसके जीवन में थी वो ये थी कि वह तो एक नाजायज बेटा था। Second limitation, दूसरी सीमा क्या थी? he was rejected and unwanted. उसको तो कोई पसंद नहीं करता था, उसको तो त्यागा गया था। It says in Judges chapter 11 and verse 2, Gilead's wife also bore him sons, and when they were grown up, they drove Jephthah away. You are not going to get any inheritance in our family, they said, because you are a son of another woman. न्यायों का 11 अध्याय और दूसरा वचन, गिलाद की स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यप्ता को ये कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का पुत्र है, इस कारण हमारे पिता की घराने की कोई भी भाग ना पाएगा। So one of the bad things that we face in our life is rejection. और एक बहुत ही ज्यादा बुरी बातों से जिससे हम गुजरते हैं वो है त्यागापन। Rejection is a very terrible state. और जब भी हमें त्यागा जाता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी परिस्थिति होती Oh, है। Jesus went through a lot of physical hardship. Apostle Paul went through a lot of
physical hardship. और जैसे यीशु मसीह अनेक ऐसे शारीरिक पीड़ा से गुजरा है, पौलुस भी अनेक ऐसी शारीरिक पीड़ा से गुजरा है। But Jesus was fearing about that rejection from the Heavenly Father. लेकिन सबसे ज्यादा बुरा यीशु मसीह को तब लगा जब उसको लगा कि स्वर्गीय पिता ने उसे त्याग दिया है। So on the cross he cried out and saying, Father, why have you forsaken me? इसके लिए वो क्रूस पर चिल्लाता है, रोता है कि पिता आपने मुझे त्याग क्यों दिया है। So brothers and sisters, rejection is very terrible in our life. और त्यागापन हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति है। Many people in the Bible went through rejection. और अनेक लोग जो बाइबल में थे वो उसे त्यागेपन से गए हैं। We know Joseph and David and Daniel, they all were rejected by their family members from their people that they were around and they knew them. और यूसुफ, दानियल और दाऊद, ये सारे ही लोग अपने परिवार वालों से त्यागे हुए थे और उनको कोई चाहता नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं उनके जीवन से। But it did not stop them from becoming mighty vessels for the kingdom of God. लेकिन ये सारी चीजें रोक नहीं पाई ताकि वे परमेश्वर के काम के उपयोगी तरीके के पात्र बन सकें। Today are you facing rejection? क्या आज आप अपने जीवन में त्यागेपन को महसूस कर रहे हैं? But a good news for you is लेकिन आज आपके लिए एक अच्छी खबर है, Jesus took rejection on himself. वो त्यागापन जो था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया He है was rejected by the heavenly Father. और वे स्वर्गीय पिता के द्वारा नकारा गया था। He was rejected by his own disciples. उसके खुद के शिष्यों ने उसे नकार दिया था And since he went to that rejection, और क्योंकि वे उस त्यागेपन से गुजरा है, today you and me can be accepted by our heavenly Father. उसकी वजह से आज आप और मैं स्वर्गीय पिता के द्वारा आज हम अपनाए हुए हैं। It doesn't matter people have rejected you, फर्क नहीं पड़ता आज आपको शायद लोगों ने नकारा है, but our God has accepted you. लेकिन आज परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। So second thing that was a limitation in his life was he felt rejected and unwanted. दूसरी बात जो यफ्ता के जीवन में एक तरीके की सीमा थी कि उसको तो कोई चाहता नहीं था, उसकी तो किसी को जरूरत नहीं थी, वे त्यागा हुआ था। Third thing, तीसरी बात, he was thrown out of his house. उसको अपने घर से निकाल दिया गया था। So practically he became a homeless person in a very young age. और वास्तविक तरीके से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा छोटी सी उम्र में ही ऐसा अनाथ बन गया। There was no future. उसके लिए तो कोई भविष्य नहीं दिख रहा And है। it says in the word that he had no inheritance. और यहाँ पर वचन में हम देख सकते हैं कि उसके लिए तो कोई भी विरासत नहीं थी। So he had lot of bitterness, he had lot of anger that was revolving in his mind and his thoughts. और उसके मन में अनेक ऐसा गुस्सा होगा, कड़वापन होगा। Yes, whenever we do something wrong and if we face these consequences, it is all right. और हाँ, जब भी हम कुछ गलत करते हैं और ये सारी बातों का हमें सामना करना पड़ता है तो ठीक है ये सारी But बातें। today we see that this man did not have any fault, he did not do anything wrong, and yet there is injustice happening in his life. लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ गलत नहीं किया है, दूसरों की गलतियों की वजह से वह सजा काट रहा है और ये कितना ज्यादा उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। So he must be battling with lot of things in his heart. और शायद बहुत सारी चीजें उसके दिल में वो संघर्ष करता होगा। Maybe anger and maybe bitterness and pain, suicidal thoughts, you name it, he was battling that all. और शायद वह कड़वेपन से गुजरता होगा, बहुत ज्यादा गुस्से से गुजरता होगा, शायद वह आत्महत्या की विचारों को सोचता होगा। He had lot of oppositions in his life. और शायद उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे विरोधी थे He had limited educational opportunities. और उसको तो शिक्षण भी प्राप्त करने की अनेक सीमाएं थी। Oh, there was no money, financial crisis, poverty, उसके पास पैसे नहीं थे, वे गरीबी में जी रहा था and he was going through loneliness. और वे अकेलेपन से गुजर रहा था। So how can this kind of person become a mighty man of God? और ऐसा व्यक्ति कैसे परमेश्वर का महान सेवक बन सकता है? So God can do that in your life. और आज परमेश्वर वे आपके जीवन में कर सकता है। Another thing that was a limitation in his life. एक और बात जो उसके जीवन में वो सीमा हो गई थी, It says in Judges chapter 11 and verse 3. So Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob, where a gang of scoundrels gathered around him and followed him. न्यायों का 11 अध्याय और 3 वचन। तब यप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठा हो गए और उसके संग फिरने लगे। So the fourth limitation that he faced in his life was he was influenced by wrong people. चौथा जो सीमा उसके जीवन में थी वो ये थी कि वे गलत लोगों से प्रभावित हो गया। So here we see that he goes away from his brothers and settles in the land of Tob. वे अपने भाइयों से दूर जाकर तोब नाम के देश में रहने लगा। And the Bible says the worthless people began to come and follow him. और यहाँ पर वचन लिखा है कि लुच्चे लोग उसके पास इकट्ठा आने लगे। So here we see the word for worthless in Hebrew is word rek. अगर लुच्चे शब्द को इब्री भाषा में देखा जाए तो वहाँ पर रेक शब्द इस्तेमाल हुआ है। The meaning is empty, idle, vain or foolish. इसका मतलब है जो खाली है, जो बेकार है, जो व्यर्थ है।
So now he's hanging out with this type of people. और अभी तो वो ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहा है, Worthless people, lawless people. ऐसे लोग जिनके जीवन में तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे लोग जो अपने जीवन में पूरी तरीके से खाली हैं। When David was running from Saul और जब दाऊद शाऊल से भाग रहा था and he was hiding himself in different types of caves. और वे अलग अलग ऐसी गुफाओं में छुप रहा था, But let me tell you, David and Jephthah both had a calling in their life. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दाऊद के जीवन में, यफ्ता के जीवन में एक तो बुलावट थी, There was something in their life that attracted people towards them. और उनके जीवन में कुछ तो ऐसी बात थी जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए जाते थे। Yes, they didn't have any social status, they did not have any fame or anything, but they had a call in their life. वो मशहूर नहीं थे, सामाजिक तरीके से उनका कुछ एक ऊंचा स्थान नहीं था, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की बुलावट में जी रहे थे। Both David and Jephthah, they were rejected by their brothers. और यफ्ता और दाऊद दोनों ही अपने भाइयों के द्वारा नकारे गए थे। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता the हूँ call of God was on their life. कि परमेश्वर की बुलावट उनके जीवन में थी, And there was something different in their life that attracted many people towards them. और उसके जीवन में अनेक ऐसी बातें थी जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। And so worthless people began to come to Jephthah, and also we see in David's life. और यफ्ता के जीवन में, दाऊद के जीवन में ऐसे व्यर्थ लोग, बेकार लोग, लुच्चे लोग उनके जीवन में आने लगे, And in King David's life, और दाऊद के जीवन में भी these worthless people became mighty warriors for the kingdom of God. ये जो व्यर्थ लोग थे, जो बेकार लोग थे, वो दाऊद की सेना में एक बहुत ही ज्यादा योद्धा बन गए, Because of that anointing that was on David's life. क्योंकि दाऊद के जीवन में तो एक अभिषेक था, And because of that anointing, these people were transferred and they were transformed into mighty warriors. और उस अभिषेक की वजह से वो अभिषेक उनके जीवन में भी आया है और उनको उसने परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है, महायोद्धा बना दिया है। So today you might be that person who is called as worthless or vain person by the society. और शायद आज आप एक ऐसे लोग होंगे जो समाज के द्वारा बेकार कहे जाते होंगे, लुच्चे कहे जाते होंगे, बेकार व्यर्थ कहे जाते होंगे। But just as those people came to King David, लेकिन वो सारे लोग जैसे दाऊद के पास आए हैं, who was an anointed man of God, जो तो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति था, and because of that anointing, they were transformed into mighty warriors. लेकिन उस अभिषेक की वजह से उसके पास जो लोग आए उनका परिवर्तन हो गया है, वे तो बदल गए हैं। Today we need to come to the anointed one, the Messiah. और आज हमें वो अभिषिक्त के पास आना है जो हमारा मसीहा है। And when we come to him and spend time with him, his anointing, his presence will transform us into mighty men and women of God. और उसकी उपस्थिति में वो महान अभिषेक जो हमारे ऊपर बहेगा, उसकी वजह से हम परमेश्वर के महान दास और दासी बन पाएंगे। Your identity will change. आपकी पहचान बदल जाएगी You will have some kind of role and responsibility in the kingdom of God. और परमेश्वर आपको अब उसके कार्य में एक तरीके का काम देगा, जिम्मेदारी देगा। So today do not blame people for what is going on in your life. और आज आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसके लिए लोगों को दोष मत दीजिए। Why should we blame people? हमें लोगों को क्यों दोष देना है? Many people in the Bible also went through those kind of similar situations, but they did not blame anybody. आज आप जैसी परिस्थितियों से जा रहे हैं, बाइबल में भी अनेक लोग वैसी परिस्थितियों से गए, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं लगाया है। One man of God said, एक परमेश्वर के दास ने कहा है when a man blames other for his failures, कि जब एक व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरे को दोष लगाता है, also he should credit them for their success. तो जब वे यश पाता है तो उसे दूसरों को भी वो बातों में सहभागी करना चाहिए। So we only blame people in our bad times. और हम हमारे बुरे समय में लोगों के ऊपर सिर्फ दोष लगाते हैं। But what about our good times? We should also credit some people that played an important role in your life. लेकिन जब हमको यश प्राप्त होता है, हम पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं, तब भी हमें लोगों की तारीफ करनी चाहिए, उन्हें भी हमारे यश में सहभागी करना चाहिए। Don't just say that I personally or that was only me who did all these things. We need to also acknowledge and credit people for standing with us, for praying for us, for supporting us. उसी तरीके से हमें उन लोगों को पूरी तरीके से सहभागी बनाना है, उनको हमें श्रेय देना है कि वे हमारे साथ खड़े हुए, उन्होंने हमें उत्तेजन दिया है। One person has said, एक व्यक्ति ने कहा है, all blame is a waste of time. दोष लगाना तो समय की बर्बादी है। No matter how much fault you find with another, कि आप कितना भी ज्यादा दूसरों में कमियां देखेंगे, it will not change you. वो सारी बातों से आप नहीं बदलेंगे। You will never be successful. आप वो सारी बातों से यश नहीं प्राप्त कर Nobody पाएंगे। has become successful by just blaming people. और कोई भी दोष लगाने से यश नहीं प्राप्त कर पाया है। But when we take responsibility and try to act in our life, we become successful. लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेकर हम अपने जीवन में काम करने लगते हैं, तब हम यश को प्राप्त करते हैं। Someone has said that there are 5 types of people that we need to avoid them. और ऐसा कहा जाता है 5 तरीके के लोग हैं जिनसे हमें दूर रहना है। The first category of people is the blamers. सबसे पहले लोग जो दोष लगाते हैं, They are blamers who always complain and blame others
for the wrong that is happening in their life. वो हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं वो सारी चीजों के लिए जो उनके जीवन में हो रही हैं। A funny story is told about Adam and his sons. और एक बहुत ही ज्यादा मजाकिया कहानी बताई जाती है आदम और उसके बच्चों के बारे It's में। like a joke. और ये एक मजाक है। So one day Adam and his two boys were hunting and they were doing things in the forest. एक दिन आदम और उसके दो बेटे शिकार कर रहे थे, जंगल में समय बिता रहे थे। And as they were walking, they come to Garden of Eden. और जैसे वे चल रहे थे ईदन बाग के पास वो आए। From that place, they were kicked out or they were forbidden to come. एक ऐसी जगह जहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था, जहाँ से उनको फेंक दिया गया था बाहर। So Adam was looking at Garden of Eden. आदम ईदन बाग को देख रहा था। And as he was looking at the Garden of Eden, he began to cry. और जैसे ही वो उस बाग को देख रहा था, वे रोने लगा। So one of his sons said, "Daddy, why are you crying?" और एक बच्चे ने उससे कहा, पिता आप क्यों रो रहे हैं? He wiped his tears and said, "Son, this is the Garden of Eden where we were kicked out from." और वे अपने बेटे को कहने लगा अपने आंसू पोंछते हुए कि यही बाग था जिससे हमें बाहर निकाल दिया गया। We were living a good life. हम तो अच्छा जीवन जी रहे थे। Everything was all right. सब कुछ अच्छा चल रहा था। Until one day your mom disobeyed God or she ate the fruit. जब तक कि तुम्हारी माँ जो थी उसने आज्ञा पालन नहीं किया, उसने वो फल खा लिया। And because of her we are kicked out. और उसकी वजह से हमें बाहर निकाल दिया गया है। So we know that it was Eve and Adam's both fault. हमें पता है कि आदम और हवा दोनों की ही गलती थी। So first kind of people or category of people are those who are called as blamers. और सबसे पहले ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों के ऊपर दोष लगाते They हैं। always blame people for anything that happens in their life. उनके जीवन में कुछ भी बुरा होता है वे दूसरों के ऊपर दोष लगाना So शुरू we need करते हैं। to avoid this type of people. हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। Second type of people are called as drainers. दूसरे लोग ऐसे हैं जो आपके अंदर से कुछ निकाल लेते हैं। So these people always suck everything out of your life. The life, the joy, that happiness, everything that you have, these people drain it from your life. और आपके अंदर जोश जो होता है, आपके अंदर आनंद जो है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, वो मानो वो सारी चीजों को वो निकाल लेते हैं आपके अंदर से। Everything is about them, everything about their own profit and selfishness. They are just there to take things from you. और वो सिर्फ मतलबीपन के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और उनको आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। Yes, we need to help other people. हाँ, हमें दूसरे लोगों की मदद करनी है। But we have to be careful from this type of people that they are always there to take out that life inside of you. लेकिन हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना है जो आपके जीवन से जीवन निकालना चाहते हैं, आपके अंदर से वो सारी चीजों को निकालना चाहते हैं। Third category of people are called as the shamers. और तीसरे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शर्मिंदगी करते हैं। Always they will put you in a position of shame. ऐसे लोग जो हमेशा आपको शर्मिंदगी में ले जाएंगे। They will put you down. वो हमेशा आपको नीचा They दिखाएंगे। will make fun of you. वे हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे। Their words and their actions will produce that shame and that guilt in your life. उनके शब्दों की वजह से, उनकी कृतियों की वजह से आप हमेशा शर्मिंदा महसूस करेंगे। So we need to avoid this type of people. हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। Fourth type of category of these people चौथे लोग हैं is called as gossipers. ऐसे लोग जो पीठ पीछे बात करते हैं। They are always talking something in front of you and something behind your back. वे आपके सामने तो कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। It is all about criticizing and accusation and blaming you all the time. हमेशा आपके ऊपर दोष लगाना, हमेशा आपके बारे में बुरी बुरी बातों को बोलना। And they take some things from you and make it as a big deal. और वे आपसे कुछ चीजों को लेंगे और उसको बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा बना के, बड़ा चढ़ा के बताएंगे। So we need to avoid this type of people. हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। And the fifth category is the people called as discouragers. और पांचवे लोग हैं निराश करने वाले। These people always discourage you. वे हमेशा आपको निराश करते रहते They हैं। will not do anything in their life. वे अपने जीवन में तो कुछ नहीं करते, But if you want to do something and you want to go ahead, you want to take a risk, they will always discourage you. लेकिन आप अपने जीवन में कुछ तो आगे करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो आपको निराश करेंगे, आपको पीछे खींच So लेंगे। today, if God wants to exalt you and take you forward, you need to cut yourself from this type of people that are in your life. और आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालना जरूरी So है। how can we go from limitation to exaltation? आखिर आज हम सीमितता से कैसे परमेश्वर हमको ऊंचा कर सकता है? How can we break free from this limitation in our वो life? सारी सीमाओं से हम कैसे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं? First thing, सबसे पहली बात, let not negativity or limitation pull you back or label you. और आज वो जो सारी नकारात्मक बातें हैं, वो जो सारी सीमाएं हैं, आज वो आपके ऊपर एक आपकी पहचान न बनने पाए, वो आपको रोकने ना पाए। Oh yes, there were a lot of flaws and a lot of limitations in Jephthah's life, but God underlined the positive things in his life. और बहुत सारी ऐसी
सीमाएं थी, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातें थी यप्ता के जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने तो उसकी सिर्फ सकारात्मक बातों के ऊपर ही जोर डाला है। God underlined that positive character in his life. उसके अंदर जो अच्छा चरित्र था, जो अच्छी बातें थी, उसी के ऊपर परमेश्वर ने जोर डाला है। So as we see in Judges chapter 11 and verse 1. और जैसे कि हम न्यायों के 11 अध्याय और 1 वचन में देखते And हैं, now Jephthah of Gilead was a great warrior. और यप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था। So here we know that he was an illegitimate child and he had a lot of other things, but God points out his strength when he starts this chapter. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी पहचान तो करनी चाहिए थी, वे तो नाजायज बेटा था और बहुत सारी कमियों के साथ करनी चाहिए, लेकिन इस अध्याय की शुरुआत हुई है कि वे तो एक शूरवीर था। So God started with the positive point, his attribute that he was a great warrior. और यहाँ पर शुरुआत में ही परमेश्वर ने उसकी खूबियों के बारे में बताया कि वे तो एक शूरवीर था। God starts with his name. और यहाँ पर तो परमेश्वर ने उसके नाम से उस अध्याय की शुरुआत की है। The meaning of Jephthah in Hebrew is to open, to break out or to lose. यप्ता नाम का अगर हम इब्री भाषा में मतलब देखें तो इसका मतलब होगा बाहर निकलना, पूरी तरीके से छुटकारा पाना। So here we see that he is introduced by his name that is prophetic in nature. और यहाँ पर उसका नाम से शुरुआत हुई है और उसके नाम में तो एक भविष्यवात्मक तरीके का एक संदेश है। The person who will lose, the person who will break out, the person who will free something. एक ऐसा व्यक्ति जो आजादी दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। So he was going to be the person who is going to lose the yoke that was on God's people from the enemy. एक ऐसा व्यक्ति जो इजरायली लोगों को दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। So same thing we can see even in the life of Gideon, और हम गिदयोन के जीवन में भी देख सकते हैं that he was running away from the enemy. वह तो दुश्मनों से भाग रहा था He was hiding his all the belongings and the stuff from the enemy. और वह दुश्मनों से अपनी सारी चीजों को छुपा रहा था, अपने आप को छुपा रहा था। But Bible says the angel of God appeared to him लेकिन स्वर्गदूत उसके सामने आया है and he brings a salutation to Gideon, और वह उसके लिए एक संदेश लेकर आया है and that is a mighty man of valor. और उसको उसने कहा है कि तुम तो शूरवीर हो। So at this time he's hiding from the enemy. और यहाँ पर तो वह दुश्मनों से छुप रहा था। There is no boldness, there is no step of courage, you cannot see any confidence, but yet God addresses him as a mighty man of valor. उसके जीवन में तो आत्मविश्वास नहीं दिखता है, किसी भी तरीके का धाड़स नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि तुम तो शूरवीर हो। The world will see your present situation and label you. और आज दुनिया आपकी ऐसी परिस्थिति को देखेगी और आपको नाम देगी। They will see your past, they will see your present, and they will judge you and they will put a label on your life. वह आपके भूतकाल को देखेगा, आपके वर्तमान को देखेगा और जगत आपको उन सारी परिस्थितियों की वजह से नाम देगा। But God also sees the future that is in store for you and me. लेकिन हमारा परमेश्वर तो भविष्य को देखता है जो उसने तैयार किया है। So today, no matter what is your past and what is your present, फर्क नहीं पड़ता आज आपका भूतकाल क्या था, आज आपका वर्तमान काल क्या maybe है, it can be just like Jephthah, और शायद ये सारी बातें तो यप्ता के जैसी ही होंगी, but God sees your glorious future. लेकिन परमेश्वर आज आपके महिमा में भविष्य को देखता है। Let me tell you, your future is bright. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। Oh, the things that you have never imagined are going to come in your life. और ऐसी बातें जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, वो बातें आपके जीवन में पूरी होने So वाली here हैं। we see that his name was a prophetic name. और उसका नाम तो एक भविष्यवात्मक तरीके से संदेश देने वाला है। The Bible says his father gave him that name. और उसके पिता ने उसे ये नाम दिया था। So today our heavenly Father has given us a new name. और आज स्वर्गीय पिता ने हमें एक नया नाम दिया है। And when we see in the New Testament, we have different names. We are beloved of God. We are hair and joint hair. We are a new creation. God has given us new names and God has given us new titles. और हम नए नियम में भी देख सकते हैं, हम तो परमेश्वर के प्रिय हैं, हम तो परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम तो परमेश्वर के वारिस हैं। नए नए नाम हमें नए नियम में दिए गए हैं। So according to that name, it can act as a prophecy or a prophetic thing you need to do for the kingdom of God. और शायद इन सारे नामों की वजह से एक भविष्यवाणी हमारे जीवन में जुड़ी है कि वो सारी बातें हमें परमेश्वर के लिए करनी है। So Jephthah became according to his prophetic name. और यप्ता अपने नाम के कारण जो उसके भविष्यवाणी का जो नाम था उसके अनुसार ही बन गया So है। whatever title and whatever position that God has given you, you need to become like that in your life. और आज परमेश्वर ने जो आपको पद दिया है, जो भी नाम दिया है, उसके अनुसार आज आपको अपने जीवन में बनना जरूरी है। Your heavenly Father will never lie. और आपका स्वर्गीय पिता तो कभी झूठ नहीं बोलता। Whatever promise, whatever dream He has given you, He will fulfill it. और जो भी सपना, जो भी वादा आपको उसने दिया है, वो हमेशा पूरा करके रहेगा। But just like Jephthah, right at this present time, you might think that nothing is happening, everything is acting opposite in my life. लेकिन यप्ता के जीवन के जैसा तो आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में तो कुछ भी
नहीं हो रहा है, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है। But let me tell you, God in an instance and in a moment can change everything. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पल में, एक समय में परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। Nowhere we see in the scriptures और कहीं भी हम वचन में ऐसा नहीं देखते that Jephthah became an evil man, or he became addicted, or he became a wrong person because of the limitations and because of the treatment that he received. वो सारी सीमाओं की वजह से उसके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था, वो एक खूनी बन गया, या वो एक ऐसा ड्रग्स लेने वाला बन गया, या वो पूरी गलत संगति में चला गया, ऐसा कहीं भी वचन में नहीं लिखा है। Today in this time, many people blame that because of other people's faults and things, I have become like this. और अनेक लोग आज दोष देते हैं कि दूसरों की संगति की वजह से मैं भी गलत राह पर चल रहा हूँ। But brothers and sisters, let me tell you, लेकिन भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, live a good life. अच्छा जीवन जिए। God has created you. परमेश्वर ने आपको बनाया है, You are a vessel of honor for His kingdom. और परमेश्वर के लिए तो आप एक ऐसा आदर देने वाले पात्र बनने पाए। So today, take a decision that I will break free from all my limitations. और आज एक वादा करिए परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं सारी सीमाओं से बाहर निकलने वाला हूँ, छुटकारा पाने वाला हूँ। How can I break free? मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? Oh, it is by the power of Holy Spirit that is working in you. वो तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है जो आपके अंदर पहले से ही कार्य कर रहा है। And also the choices that you are making today. और वो सारी जो चुनाव है जो आज आप अपने जीवन में कर रहे हैं, So how can you break free? आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं? One thing is you need to face your limitations, face your weaknesses, face all those things that are against you. और आज हमें वो सारी सीमाओं से, वो सारी कमियों से, वो सारी घटियों के सामने हमें सामना करना है। Don't run away from them. You face them with the courage and the power that is working inside of you. आज आपको उससे दूर नहीं भागना है, लेकिन आज आपको उसका सामना करना है और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा विजय प्राप्त If करनी the है। power of God is working inside of you, you will not be defeated. और अगर आज वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रहा है तो आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे ही। David became a mighty man of importance and recognition only when he faced Goliath. और दाऊद तो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर व्यक्ति बन गया, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया जब उसने गोलायत का सामना किया So है। face your limitations, face your problems, face your past and everything that is going on in your life. और आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सारी चीजों का आपको सामना करना जरूरी है, वो समस्याओं का सामना करिए। Deal with it. Allow God to give you victory over those past things in your life. और वो सारी बातें जो आपके भूतकाल में हुई है, परमेश्वर से कहिए वो सारी बातों में मुझे विजय प्राप्त करने दे। Today you might not be able to change your outward circumstances, आज शायद आपकी बाहरी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते, but you can change something that is internally or from inside. लेकिन जो आपके अंदर चल रहा है वो बातों को आप जरूर बदल सकते You हैं। can renew your mind. आज आप अपने मन का नवीनीकरण कर सकते Oh, हैं, you can have control over your thoughts. और आज आप अपनी सोच के ऊपर ताबा ले सकते You हैं, can be strong in the Lord and the power of His might. और आज आप उसके सामर्थ्य में, उसके बल में आप शक्तिमान ऐसे जीवन जी सकते Oh, हैं। you need to receive that inner healing. और आज आपको वो अंदर की चंगाई को प्राप्त करना जरूरी है। So what happens when you break free? और क्या होता है जब हम पूरी तरीके से छुटकारा पाते हैं? What happens when you get victory over the things that were a hindrance in your life? और क्या होता है कि जब वो हमारे जीवन में जो रुकावटें थी उससे हम पूरी तरीके से विजय प्राप्त करते हैं? Oh, let's see through the life of Jephthah. आइए हम देखेंगे यप्ता के जीवन से। First thing, सबसे पहली बात, he became a man of faith. वह तो विश्वास का व्यक्ति बन गया है। So we see that his life is transformed and changed. He became a man of faith. उसका जीवन तो बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, वह तो एक विश्वास का व्यक्ति बन गया है। Know that faith pleases God. और हमें पता है कि विश्वास तो परमेश्वर को खुश करता है। So he was a man who made a journey towards a man of faith. और उसने तो एक यात्रा की है कि वह एक विश्वास का मनुष्य बन सके। So in order for you to break forth the limitations in your life, you and me need to become a man of faith. और आज हमें अगर अपनी सारी सीमाओं से पूरी तरीके से विजय प्राप्त करना है तो हमें आज एक विश्वास का व्यक्ति बनना है। How to receive that faith? हम विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते Bible हैं? says God gives each and every one of us a measure of faith. और बाइबल तो कहता है कि हम सभी लोगों को एक तरीके का नापा हुआ तरीके का विश्वास दिया हुआ है। Spend time in the presence of God. जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, Your faith will grow. आपका विश्वास बढ़ जाएगा, And that faith will move the mountains, और उस विश्वास के द्वारा तो पर्वत हिल जाएंगे, answer prayers and bring deliverance in the lives of people. और लोगों के जीवन में तो चंगाइयां मिलेंगी, लोगों के जीवन में तो उत्तर मिलने पाएंगे। So when we break free from these limitations, we become people of faith. और ये सारी सीमाओं से जब हम पूरी तरीके से छुटकारा पाते हैं तो हम विश्वास के व्यक्ति बन जाते हैं। Second thing, दूसरी बात, he became a man of prayer. वे तो प्रार्थना का एक व्यक्ति बन गया। It says in Judges chapter 11 and verse 11.
न्यायों की 11:11 में लिखा है, So when Jephthah and the elders went to God और जब यप्ता और सभी लोग परमेश्वर के पास गए हैं in the presence of God in Mizpah, मिस्पा में परमेश्वर की उपस्थिति में, Bible says Jephthah repeated what was said by the elders. और उसने वही बातें की हैं जो सारे लोगों ने कही थी। So we see that Mizpah is the place of God. हम देख सकते हैं मिस्पा तो परमेश्वर की जगह है, And many times the prophets used to gather people at Mizpah. और अनेक ऐसे भविष्यवक्ता जो होते थे वो मिस्पा पे इकट्ठा हो जाते थे, We see here he became a man of prayer. और यहाँ पर वे तो एक प्रार्थना का व्यक्ति बन गया है, Now he's receiving a leadership position. और अभी तो उसको एक पद मिलने वाला है, There is a big responsibility and huge difference he has to make. और यहाँ पर उसको एक बड़ा पद मिलने वाला है, जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसके जीवन से तो एक प्रभावशाली काम होना चाहिए। Now he's not saying that, oh, since God has made me a judge, now I can take any decision and I can do anything in my own strength. और वो ऐसा नहीं कह रहा है परमेश्वर ने मुझे न्याय बनाया है, अभी मैं खुद की ताकत में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी निर्णय ले सकता हूँ। When he received this position of leadership, जब उसको अगवा होने का एक पद प्राप्त हुआ है, he takes the elders with him and he gathers them to the Mizpah, the place of God. वे प्रधानों को और सभी लोगों को इकट्ठा करके मिस्पा जो परमेश्वर की जगह है वहां पर लेकर गया है, And he began to spend time in the presence of God. और वे परमेश्वर के साथ वहां पर समय बिताने लगा है। So today, whatever business and job and opportunity that God is giving you, और आज जो भी मौके परमेश्वर आपको दे रहा है, जो भी नौकरी और जो भी सारी बातें जो आपके जीवन में आज आ रही हैं, you need to take time to seek God. आज आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। Jephthah had a difficult task before him. यप्ता के सामने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल ऐसी परिस्थितियां थी, He was going to be a judge of millions of people. और वे तो लाखों लोगों का एक ऐसा न्याय होने वाला था, So he became a man of faith. और इसके लिए तो विश्वास का व्यक्ति बन गया। But faith is not enough. लेकिन विश्वास काफी नहीं We है, need to become a man and woman of prayer as well. लेकिन हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रार्थना करने वाला हो। Even in the life of Jesus, before he went for ministry, और यीशु मसीह अपने जीवन में सेवा करने के पहले he had anointing from God. उसको तो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक प्राप्त हुआ He था, had vision from God. और परमेश्वर के द्वारा उसको एक दर्शन था, But he had that time with the Lord in the time of prayer, and he was spending many hours in the presence of God. लेकिन वो अनेक ऐसे समय बिता रहा था, अनेक ऐसे परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था। So whatever difficult task is before you today, और आज जो भी मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, take time to seek God. परमेश्वर की आज खोज कीजिए। Third thing, तीसरी बात, he sought peace and not conflict. और वो कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन हमेशा शांति चाहता था। It says in Judges chapter 11 and verse 12, then Jephthah sent messengers to the king of Ammon, asking, why have you come out to fight against my land? न्यायों का 11 अध्याय और 12 वचन। तब यप्ता ने एमोनियों के राजा के पास दूतों को यह कहकर भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है। So here we see that just because he became a judge, he did not do anything in his own strength. और न्याय बनने के बाद उसने खुद की ताकत में कुछ नहीं किया है। Just because he was warrior and the call of God was on his life, he did not go and do war, and he just did not go and attack the enemy. और वे एक शूरवीर था, परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये सारी बातों के बावजूद वे खुद जाकर लड़ाई नहीं करने लगा है, लेकिन उसने तो शांति को चाहा है। He was trying to solve everything in peace. वे सारी बातों को शांति में सुलझाना चाहता He था, did not wanted any conflict or war to take place in his land. और वे नहीं चाहता था कि उसकी जगह पर कोई भी लड़ाई होने पाए, झगड़े होने पाए। So he's trying to solve the situation that was aroused in that land by peaceful means. और वहां पर जो संघर्ष खड़े हो गए थे, जहां पर वो मुश्किलें खड़ी हो गई थी, वो सारी बातों को वो शांति से सुलझाना चाहता So था। many people, just because they were hurt, they like to hurt others. कुछ ऐसे लोग जिनको ठेस पहुंचती है, वे दूसरे लोग को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। But Jephthah took time to resolve all the inner conflicts in his life. लेकिन यप्ता ने समय निकाला है ताकि वे अंदर के सारी बातों में चंगाई प्राप्त करने Yes, he पाए। was bitter. Yes, he was angry. हाँ, वे तो गुस्सा था, वो बहुत ही ज्यादा कड़वेपन को अपने जीवन में लिया था, But he did not allow that to dictate his life. लेकिन ये सारी बातें उसके जीवन को बदल नहीं पाई हैं। How can we tell that he was a peaceful man? हम कैसे देख सकते हैं कि वे एक शांति करने वाला व्यक्ति था? Because the first step he takes is to solve the conflict in peace. सबसे पहली बात हमें यहाँ पे पता चलती है कि उसने सारी बातों को शांति में सुलझाने की कोशिश की So है, we know that the issues that were inside of him were resolved. और उसके अंदर जितनी भी ऐसी बातें थी वो सारी बातें शांत हो गई थी। If they would not been resolved, he would have taken that frustration and anger in the form of revenge by attacking the enemy. अगर आज उसके अंदर शांति नहीं होती थी तो शायद वे बदला लेता था, हल्ला करता था। So today, brothers and sisters, solve those deep resentments and that bitterness in your life. और आज आपके अंदर की गहराई में
जो भी बातों में आपको परमेश्वर की चंगाई चाहिए आज आपको प्राप्त करना चाहिए, Because in future it can just come up in your life and it can cause a massive damage. क्योंकि भविष्य में ये सारी बातें आपके जीवन से बाहर निकल सकती हैं और बहुत ही ज्यादा ऐसा नाशवंत बातें आपके जीवन से उत्पन्न हो सकती So हैं। take time and allow the Holy Spirit to give you freedom in your inner being. और आज समय निकालिए ताकि पवित्र आत्मा आपको अंदर जो आपको चंगाई प्राप्त करनी है वो चंगाई देने पाए। And the last thing, he became a man of power. आखिरी बात, वे तो एक सामर्थ का व्यक्ति बन गया। Judges chapter 11 and verse 29 it says, at that time the Spirit of the Lord came upon Jephthah. न्यायों का 11 अध्याय और 29 वचन, तब यहोवा की आत्मा यप्ता में समा गई। So we see the Spirit of the Lord came upon Jephthah. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके ऊपर उतरी है। And Bible says, and then he led an army against the Ammonites or the enemy. और दुश्मनों के विरुद्ध उसने वो सारी सेनाओं को चलाया है। So he was dependent upon the power of the Holy वह तो Spirit. परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर निर्भर था। Yes, he was a man of God. हाँ, वह परमेश्वर का एक सेवक था। Yeah, he was called as a man of valor. और हाँ, उसको तो एक सामर्थी व्यक्ति कहा जाता He था। was appointed as a judge. उसको एक न्यायी बनाया गया था। Everyone was accepting him now. सब लोग तो उसको अपना रहे थे अभी, But he did not go to war without the power of the Holy Spirit. लेकिन वह उस युद्ध में बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना नहीं गया है। Brothers and sisters, we need the power of the Holy हमें Spirit. आज पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, Because the word says it is not by might, not by power, but by the Holy Spirit. क्योंकि वचन तो ऐसा कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। At last we see the power of the Holy Spirit just come upon him. और अंत में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उतरा And है। with that power he went to face Ammonites. और उस सामर्थ के द्वारा वे अम्मोनियों के सामना कर पाया है। Just as David had anointing of the Holy Spirit was over his life. That's why he was able to face Goliath. और दाऊद के जीवन में जो अभिषेक था उसके द्वारा वे गोलायत का सामना कर पाया है। Why was Saul not able to face Goliath? और शाऊल क्यों सामना नहीं कर पाया? If Saul was the Saul of old times, और अगर शाऊल पुराने जमाने का शाऊल होता था, if he was anointed by the Holy Spirit, जब उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया था, he would have gone and he would have destroyed that Goliath. तो वो जाता था और उस गोलायत का नाश करता था। But we know that the Spirit of the Lord was now not working in his life. लेकिन हमें पता है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन से निकल गई थी। But now David was anointed and he had that power of the Holy Spirit. लेकिन दाऊद तो अभिषिक्त था और उसके अंदर पवित्र आत्मा का उपस्थिति कार्य कर रही And थी, that's why he was able to face his enemy. और इसकी वजह से वे अपने दुश्मन का सामना कर पाया है। As you have enemies in your life, और आज शायद आज आपके जीवन में अनेक ऐसे दुश्मन होंगे। do not face those enemies without the unction and the leading and the power of the Holy Spirit. आज वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना उनका सामना मत करिए। Holy Spirit will never come upon unholy person, a people who is living a compromised life of sin and other things. और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर नहीं आएगा जो पाप का जीवन जी रहे हैं, पूरी तरीके से समझौते का जीवन जी रहे हैं। So Jephthah waited till he received the power of the Holy Spirit. यप्ता ने इंतजार किया है जब तक कि वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर ना जाए। Jesus Christ, the apostles waited until they received the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह सारे शिष्यों ने इंतजार किया है कि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं। When the Holy Spirit came upon Jephthah, और यप्ता के ऊपर जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई Holy है, Spirit began to guide him. पवित्र आत्मा उसका मार्गदर्शन करने लगा He है। received new directions उसने तो नई नई ऐसी मार्गदर्शनों को प्राप्त किया and he है was able to go and fight the enemy. और वह तो अपने दुश्मनों से जाकर लड़ पाया है। So today, brothers and sisters, और आज भाई और बहन, break free from all the limitations. आज जितनी भी आपके जीवन में सीमाएं हैं उनको तोड़ दीजिए, उनसे बाहर निकलिए। As we read that the power of the Holy Spirit is working inside of you. जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि पवित्र आत्मा का महान सामर्थ्य आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है, And that power is taking you from one point to another point. और वो सामर्थ्य के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। So today, God wants to take you from limitations to exaltation. और आज परमेश्वर आपको वो सारी सीमाओं से बाहर निकालकर आपको ऊंचा करना चाहता है। So through the life of Jephthah, और यप्ता के जीवन से we see a man full of limitations. हम देख सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सारी सीमाओं में अटका हुआ था, But he became a man of faith. लेकिन वह विश्वास का व्यक्ति बना है। It was because of the grace of God. और ये तो परमेश्वर की कृपा की वजह से था। God knows our limitations. परमेश्वर आज हमारी सीमाओं को जानता He है, knows our weaknesses. वह हमारी सारी कमियों को जानता है। Even if you are anointed, you will make mistakes. और भले ही आज आप अभिषिक्त हैं, आप गलतियां तब भी कर सकते But we हैं, need to take time to repent and seek the face of God. लेकिन तब भी हमें समय निकालना है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। When he took that rash vow, he repented. और उसने जब वो जल्दबाजी का वादा किया है, उसे पश्चाताप He किया felt है, very bad. उसको बहुत बुरा लगा है। And so we see the grace of God made him to appear in the Hebrews chapter 11. और वो परमेश्वर की कृपा से वो इब्रानियों की 11 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। Oh, we see the word of God tells us परमेश्वर का वचन कहता है he is able to save to the uttermost those who draw near to God
through him. और वह किसी को भी बचा सकता है। ऐसे लोग जो उसके करीब आना चाहते हैं, जो उसके सामने आना चाहते हैं, मैं उनको सारी बातों से छुटकारा दिला सकता God है। can save you और आज परमेश्वर आपको छुटकारा दिला if सकता you है draw near to God. अगर आज आप उसके पास जाएंगे। So today come with all your baggage and your limitations. और आज जो सारे के सारे जो बोझ है, वो सारी जो सीमाएं हैं, उनके साथ आज परमेश्वर के सामने आइए। Come with your past, come with your present. आपके भूतकाल के साथ, आपके वर्तमान काल के साथ आइए। Something greater is going to happen. कुछ तो महान और सामर्थ्य आपके जीवन से होने वाला Your है। future is glorious आपका भविष्य तो महिमा में है, because God is going to do something in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। God has given you new name, परमेश्वर ने आपको एक नया नाम दिया है, new identity. एक नई पहचान दी है। God never lies. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। Trust in that identity उस पहचान में विश्वास करिए and move and have your being in that identity, और आज आपका पूरा जीवन वो पहचान के द्वारा चलने पाए and God will exalt you. और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let's just spend time in worshiping our God. आइए हम परमेश्वर के साथ इस समय बिताएंगे। Come to God the way you are. आप जैसे हैं वैसे उसके सामने आइए। Come with your limitations. आज अपनी सारी सीमाओं के साथ आइए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में, Holy Spirit, in your amazing presence, पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति में, thank you for this wonderful time. धन्यवाद इस सुंदर से समय के We लिए। believe that you have spoken to us. हमें विश्वास है कि आपने हमसे बातें की हैं, Oh Lord, from limitations to exaltation. कि आप हमको सारी सीमाओं से बाहर निकाल कर हमें ऊंचा करेंगे। Lord, we bring all our limitations, all our drawbacks to you, Lord. हम आज अपनी सारी कमियों को, सारी घटियों को, सारी सीमाओं को आपके सामने लाते हैं And we accept your strength, oh God. और आज हम आपके पूरी सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकारते In the हैं। world, people have rejected us. और पूरी दुनिया में तो हमको नकारा गया होगा They have labeled us, oh God. और उन्होंने तो हमारे ऊपर अलग अलग नाम लगाए होंगे, But you have accepted us. लेकिन आपने हमें स्वीकारा है। We thank you for accepting us. धन्यवाद हमें स्वीकारने के लिए। Thank you for that call on our life. धन्यवाद उस बुलावट के लिए जो आज हमारे जीवन के ऊपर है। Oh, thank you for breaking us free from limitations. धन्यवाद कि वो सारी सीमाओं से आपने हमें छुटकारा दिला दिया And है because of that, oh God, और वो सारी बातों की वजह से we will become people of prayer. हम प्रार्थना के लोग बन जाएंगे, We will become people of faith. हम विश्वास के लोग बन We जाएंगे will become people of peace. और हम शांति के लोग बन जाएंगे And Lord, we will become people of power. और हम सामर्थ के लोग बन जाएंगे। Holy Spirit, have your way. पवित्र आत्मा आपके रास्तों पर चलाइए The difficulties that are before us, और जो सारी मुश्किलें जो आज हमारे सामने the हैं challenge that are before us, oh और वो God, सारे संघर्ष जो आज हमारे सामने हैं, we will face it with your power, Holy वो Spirit. सारी बातों का सामना हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा करेंगे Oh, the power of the Holy Spirit begin to operate through their lives. और आज वो पवित्र आत्मा का महान सामर्थ उनके जीवन में कार्य करने पाए। Use them mightily for your glory. उनको महान तरीके से इस्तेमाल कीजिए। Bless everyone today. हर एक को आशीर्वादित कीजिए। Thank you for
exalting them today, O Lord. धन्यवाद कि आप उन्हें ऊंचा करने वाले हैं। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते We हैं pray for those who are sick today. और आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। I command that power of sickness go in Jesus' name. आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सारी बीमारी का सामर्थ निकल जाने पाए। Sickness, you are defeated in the name of Jesus. बीमारी तुम यीशु मसीह के नाम में हारे हुए हो। Be healed now. यीशु के नाम में चंगे हो Be जाएं। delivered now. आज यीशु के नाम में छुटकारा पाए। Oh, those who are facing financial crisis. और आज जो भी लोग ऐसी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, Oh, open doors, O Lord. परमेश्वर उनके लिए दरवाजों को Those who खोले। are looking for jobs. और आज जो भी लोग नौकरियों को ढूंढ रहे हैं, Oh Lord, let them receive the appointments. आज उनको परमेश्वर नियुक्त होने पाए Lord, very soon they will sign the contract in the name of Jesus. और जल्दी ही वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पाए यीशु मसीह के नाम Oh, में। bless the businesses of people, O और God, आज लोगों के परमेश्वर सारे व्यवसाय को आशीर्वादित and supply कीजिए, all their needs, O उनकी Lord. सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। Fill them with your peace today. आज आपकी शांति से उन्हें भर दीजिए। Thank you once again. धन्यवाद सभी बातों के In लिए Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। Remember that God has a plan for your life. याद रखिए कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है, From limitation to exaltation. कि वो सारी सीमाओं से बाहर निकलकर परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।